Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the lecture 1. I just quick introduction to myself. My name is Engineer Shehzad Ahmad Malik and I am working as a lecturer in Computer Science Department at ComSets University, Islamabad, WA campus. My email ID is shehzadmalik at the rate of cuiva.edu.pk. I have done my BE Computer Systems from UET and I did my MS Software Engineering from NUST, Rawalpindi. I have been given the responsibility to teach you the course Programming Fundamentals. The title of the course is Programming Fundamentals. The course code is CSC 103. Students, this is a 4 credit hours course and by this time you might know what does 4 credit hours means. 4 credit hours means that 3 plus 1, it means that you need to spend 3 hours per week listening the lectures and 1 credit hours will be granting to you for your hands-on exercises and the time that you spend on your computer as if you are working with us in the lab. This 1 credit hour is not 1 hour. 1 credit hour means that minimum you are required to spend 3 hours per week. So then you should be able to get the credit in award of 1 credit hour. So basically this 4 credit hour means you are required to spend 6 hours per week. 3 hours listening the lectures, so there should be on average 2 lectures and we assume that one lecture should contain the material that is equivalent to the material taught in 90 minutes lectures. Prerequisite of this course is none. A prerequisite means a course or other requirement that a student must have taken prior to enrolling in a specific course or program. Okay students, first of all, we will discuss the course objectives. We will discuss the course objectives one by one. The objective of this course is to understand how C++ improves C with object-oriented features. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में ये बताया जा रहा है कि किस तरह से C++ ऑब्जेक्ट पर मबनी खसूसियात के साथ C को बेहतर बना रहा है. यहाँ पर C से मुराद आपकी C लैंग्वेज है, ठीक है. C++ लैंग्वेज के बाद आई थी C++ एडवांस वर्जन है C लैंग्वेज का. सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू लर्न हाउ टू राइट इनलाइन फंक्शंस फॉर एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस. लेट मी एक्सप्लेन अबाउट inline functions. If a function is inline, the compiler places a copy of the code of that function at each point where the function is called at compile time. सेकेंड ऑब्जेक्टिव में ये बताया जा रहा है कि हम सीखेंगे कि हम लोग इनलाइन फंक्शंस को कैसे लिखेंगे और उसके बाद इसमें ये चीज़ है कि इनलाइन फंक्शंस के थ्रू हम एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं. और थर्ड ऑब्जेक्टिव इज डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कोर्स. थर्ड ऑब्जेक्टिव में ये बताया जा रहा है कि हमें कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम दे दी जाएगी तो उसको सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिथम कैसे डेवलप करेंगे. एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज वेरियस कंस्ट्रक्ट्स ऑफ C++ language will be taught to students so that they can program their algorithms using these constructs. अब स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग के बेसिक कंस्ट्रक्ट्स के बारे में बताता जाऊँ. तो बेसिकली प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स
तीन टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज सीक्वेंस, सेकंड वन इज सिलेक्शन एंड थर्ड वन इज आइट्रेशन। तो जब हम ये कोर्स स्टडी करेंगे तो वन बाय वन आपको ये तमाम चीजें क्लियर होती जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, another thing is course learning outcomes. On the completion of this course, student will be able to learn the syntax and semantics of the C++ programming language. Okay, let me explain about syntax and semantics of any programming language. What does it mean? Syntax refers to the structure or form of the code that a specific programming language specifies, but semantics deal with the meaning assigned to the symbols, characters and words. तो स्टूडेंट्स, जब आप इस कोर्स को लर्न कर लेंगे तो इसका सबसे पहला एडवांटेज आपको क्या हुआ है कि आप C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सिंटैक्स और सिमेंटिक्स को सीख लेंगे कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सिंटैक्स क्या है, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे और उसके सिमेंटिक्स का भी आइडिया आपको हो जाएगा। सेकंड लर्निंग आउटकम इज डिजाइनिंग एन एल्गोरिथम फॉर अ प्रॉब्लम। Here algorithm means a sequence of instruction where the main goal is to solve a specific problem. An algorithm is a very clear specification for processing data, for doing calculations, among many other tasks. तो सेकंड आउटकम आपको क्या मिल रहा है कि जब भी आप इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लेंगे, इस लैंग्वेज को लर्न कर लेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम दिया जाएगा तो उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट आप एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं। थर्ड लर्निंग आउटकम इज डिफरेंट प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स लाइक लूप्स, स्ट्रक्चर्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, एरेज, स्ट्रिंग्स एक्सेट्रा। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स का ऑलरेडी मैंने आपको बेसिक सा आइडिया दिया है। मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट जो हैं वो बेसिकली थ्री टाइप्स के हैं, जिसके अंदर फर्स्ट जो है वो आपका सीक्वेंस आ जाता है, सेकंड जो है आपका सिलेक्शन आ जाता है और थर्ड नंबर पे आपका आइट्रेशन आ जाता है। तो इस कोर्स को पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आपको प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स का पता चल जाता है। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स के अंदर आपके लूप्स आ जाते हैं। लूप्स का मतलब ये है कि अगर आपकी स्टेटमेंट जो है, जो आपने इंस्ट्रक्शन दी है, वो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट नहीं हो रही तो वो लूप उस वक्त तक चलता जाएगा जब तक आपकी स्टेटमेंट जो है फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, जब तक वो सेटिस्फाई हो रही है वो लूप चलता जाएगा। जैसे ही आपकी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी तो आपका लूप क्या है, टर्मिनेट हो जाएगा। सेकंड नंबर पे स्ट्रक्चर्स है। Structure means a group of variables of different data types represented by a single name. Let's take an example to understand the need of a structure in C++ programming. Let's say we need to store the data of students like student name, their age, address, ID, etc. We can solve this problem easily by using structure. अब ये जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स हैं, जिस तरह हमने लूप्स की बात की, स्ट्रक्चर्स की बात की, तो ये तमाम टॉपिक्स हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे, तब जाके आपको ये तमाम चीज़ें प्रिटी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी जस्ट मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन हम इनको बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। हम इन चीज़ों को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट इज इफ एल्स। इफ एल्स जो है वो आपकी स्टेटमेंट्स हैं। इसमें ये किया जाता है कि कंडीशंस डिफाइन की जाती हैं कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई है तो आपका जो इफ वाली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाए। अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इफ वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो एल्स स्टेटमेंट पे चला जाएगा और एल्स स्टेटमेंट आपकी अगर ट्रू हो गई है तो वहां पे जाके प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है दैट इज एरे।
Arrays are used to store multiple values in a single variable instead of declaring separate variables for each value. एरेज के अंदर भी क्या होता है, हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे होते हैं. जब एरे का टॉपिक आएगा तो हम लोग इस एरे को बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिर एरे की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, हम उनको देखेंगे. वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे. जब हम एरे वाले टॉपिक पे जाएंगे, जब इस चैप्टर को कवर करेंगे, तो तब आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी. और लास्ट में आपका क्या आ रहा है, स्ट्रिंग्स. Strings are used for storing text. A string variable contains a collection of characters surrounded by double quotes. Students, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ. एक चीज़ होती है करैक्टर और एक चीज़ होती है स्ट्रिंग. दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप कोई भी सिंगल अल्फ़ाबेट लिखते हैं, सपोज आप ए लिखते हैं, ठीक है, या आप कोई भी डिजिट लिखते हैं, लाइक 1 लिखते हैं, तो ये आपका कैरेक्टर कहलाता है, ठीक है. और स्ट्रिंग क्या होता है? जब आप मल्टीपल कैरेक्टर्स लिखते हैं, लाइक ABC, या मल्टीपल डिजिट्स को जब आप कंबाइन कर देते हैं, लाइक 1 2 3, तो ये आपका स्ट्रिंग कहलाता है, ठीक है. तो अब आपको पता चल गया होगा कि कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है. कैरेक्टर को हमेशा हम लोग सिंगल कोट से रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रिंग को हमेशा हम लोग डबल कोट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमास भी बोलते हैं. तो प्रोग्रामिंग के अंदर आप कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग्स को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? जहां पे सिंगल कोट आ जाएगा वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कैरेक्टर की बात हो रही है, ठीक है. और जहां पे डबल कोट्स आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्ट्रिंग्स डिफाइन हुए हैं, स्ट्रिंग्स की बात हो रही है. एंड द लास्ट कोर्स लर्निंग आउटकम इज हाउ टू डील विद फाइल्स इन C++. ये जो लास्ट लर्निंग आउटकम है, इसमें फाइल हैंडलिंग की बात की जा रही है. फाइल हैंडलिंग के अंदर हम लोग डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं. लाइक मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ कि हम लोग फाइल ओपन की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो उसके अंदर हम लोग फाइल्स को कैसे ओपन करेंगे, या न्यू फाइल को कैसे ओपन करेंगे, या एग्जिस्टिंग फाइल को कैसे ओपन करेंगे. फिर उसके बाद दूसरा फंक्शन जो आ जाता है वो आ जाता है राइट डेटा इनटू द फाइल. फिर तीसरा फंक्शन इसमें आ जाता है रीड्स डेटा फ्रॉम द फाइल. फिर चौथा फंक्शन जो है वो है राइट्स अ कैरेक्टर इनटू द फाइल, के फाइल के अंदर आपने कोई कैरेक्टर लिखना है, एंटर करना है. फिर नेक्स्ट इसी तरह एक फंक्शन आ जाता है रीड्स अ कैरेक्टर फ्रॉम फाइल. फिर फंक्शन इसमें एक और आ जाता है कि फाइल को आपने क्लोज करना है, ठीक है. फिर इसके बाद फाइल पॉइंटर के अंदर अगर कोई गिवन पोजीशन आपने सेट करनी है. ये तमाम जो हैं ये फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस हैं. इसके अलावा और भी बहुत से फंक्शन हैं. तो जब हम लोग फाइल हैंडलिंग का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम लोग ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, तमाम चीज़ें लर्न करेंगे कि फ़ाइल हैंडलिंग के अंदर ये जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं ये किस तरह हम लोग करेंगे, किस तरह ये अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगा. स्टूडेंट्स, अब आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि कोर्स ऑब्जेक्टिव्स और कोर्स लर्निंग आउटकम्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है. ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि जब भी आप कोई कोर्स पढ़ते हैं तो उसकी अफादियत क्या होती है. ठीक है, यानी आपने एक कोर्स पढ़ लिया है, अगर आपको उसके कोर्स लर्निंग आउटकम्स नहीं पता या उसके कोर्स ऑब्जेक्टिव्स नहीं पता तो कोई भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले उस कोर्स से रिलेटेड तो आप उसको ईजिली जो है वो क्लियर नहीं कर सकते. तो ये चीज़ें मैंने इसीलिए फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिफ़ाइन की हैं ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो जाए कि जब आप इस कोर्स को स्टडी करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या है, आपको क्या मिलेगा, यानी इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें आप सीख लेंगे. ठीक है जी. तो नेक्स्ट जो है वो है बुक्स. बुक्स जो है यहाँ पे 2 टाइप्स की हैं, एक आपकी टेक्स्ट बुक है और दूसरी जो है वो आपकी रेफरेंस बुक है. टेक्स्ट बुक को हम लोग फॉलो करेंगे और ये जो रेफरेंस बुक्स मैंने यहाँ पे दी गई हैं ये आप एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम लोग जस्ट टेक्स्ट बुक को ही यूज़ करेंगे, रेफरेंस बुक को यूज़ नहीं करेंगे. टेक्स्ट बुक को तो हमने फॉलो करना ही करना है, लेकिन ये जो रेफरेंस बुक है ये फर्दर आपकी गाइडेंस के लिए है. इसमें कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इन रेफरेंस बुक्स को देख सकते हैं.
तो टेक्स्ट बुक जो है वो हमारी है C++ हाउ टू प्रोग्राम, पॉल डिटेल एंड हार्वे डिटेल, प्रेंटिस हॉल, और इसका जो है 9th एडिशन जो है वो हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, दीज आर रेफरेंस बुक्स। फर्स्ट वन इज टर्बो सी बाय रॉबर्ट लेफोर, और इसका 3rd एडिशन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, 7th इंटरनेशनल एडिशन बाय पीटर नॉर्टन। ये जो सेकंड बुक है ये इसलिए बताई गई है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप उनको कर रहे होते हैं तो उनकी बेसिक कंसेप्ट्स आपको नहीं पता होता कि बैक एंड पे उसकी थ्योरी क्या है। तो थ्योरी से रिलेटेड अगर आपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं तो आप ये सेकंड बुक जो है पीटर नॉर्टन वाली 7th इंटरनेशनल एडिशन, इसको रेफर करेंगे, हम इसको फॉलो करेंगे। फर्दर आप अपनी मर्जी से और भी बुक्स रेफर कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी कोर्स की रिक्वायरमेंट है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ये 3 बुक्स आपको यहाँ पे लिख दी हैं। अदरवाइज आपकी मर्जी है कि आप रेफरेंस मटेरियल के लिए कोई सी भी बुक यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नो वी विल डिस्कस द असेसमेंट प्लान फॉर द कोर्स ऑफ दिस सेमेस्टर। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपना जो एवेल्युएशन क्राइटेरिया है उसको किस तरह डिवाइड करेंगे इस सेमेस्टर के अंदर। तो सबसे पहले देखें, हमारा यहाँ पे इवेल्युएशन मेथड्स आ जाता है। इवेल्युएशन मेथड्स के अंदर हमारे क्विजेज आ जाते हैं, असाइनमेंट्स आ जाती हैं, हमारे सेशनल एग्जाम्स आ जाते हैं जिसमें आपका सेशनल 1 और सेशनल 2 आ जाता है। उसके बाद टर्मिनल एग्जाम्स हैं, उसके बाद ये टोटल है और ये उसकी वेटेज है। ठीक है, नेक्स्ट जो आप कॉलम देख रहे हैं इसमें थ्योरी की वेटेज बताई गई है, यानी कि ये आपका थ्योरी का सब्जेक्ट है। उसमें क्विजेस की वेटेज जो है वो 15% है, असाइनमेंट की वेटेज जो है वो 10% है, सेशनल 1 की वेटेज 10% है और सेशनल 2 की वेटेज 15% है। आपका जो टर्मिनल एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, वो है 50%, उसकी 50 वेटेज है, और टोटल जो आपका मार्क्स हैं वो है 100, उसकी वेटेज क्या है 100। जब हम थ्योरी को देखेंगे तो ये आपकी वेटेज यहाँ पे कैलकुलेट की गई है, इसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद आपका लैब आ जाता है। ठीक है, ये लैब की वेटेज है। लैब के अंदर हम लोग क्विजेज नहीं लेंगे, हम लोग असेसमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्विजेज की कोई वेटेज डिफाइन नहीं है। यहाँ पे आपकी सेकंड जो है लैब असाइनमेंट्स आ चुकी हैं। तो लैब असाइनमेंट्स की जो वेटेज है वो है 25%। उसके बाद इसी तरह सेम थ्योरी की तरह लैब में भी आपके सेशनल 1 और सेशनल 2 होंगे, और उन दोनों की वेटेज क्या है, सेम है। सेशनल 1 आपका 10% है और सेशनल 2 आपका 15% है। लैब का भी टर्मिनल एग्जाम होगा, उसकी भी वेटेज 50% है, और टोटल जो है लैब मार्क्स वो है 100 वेटेज है उसकी। ठीक है, अब ये जो वेटेज है यहाँ पे आप देखें कि ये आपकी टोटल वेटेज है जिसमें आपके थ्योरी के मार्क्स डिवाइडेड बाय 100 इंटू 75, यानी थ्योरी के जितने मार्क्स होंगे उसकी 75% वेटेज यहाँ पे ली जाएगी। ये आपके लैब के टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 100, और वहाँ से हम लोग 25% वेटेज जो है वो लेंगे। तो टोटल आपके ये थ्योरी की वेटेज 75% और लैब की वेटेज 25% यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो ये आपके टोटल मार्क्स 100 बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे देखें मैंने क्विजेज और असाइनमेंट्स के आगे 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये हमारे सेमेस्टर की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि हमने इस सेमेस्टर के अंदर 4 क्विजेज और 4 असाइनमेंट्स कंडक्ट करने ही करने हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 4 मेंशन कर दिया गया है तो पूरे सेमेस्टर के अंदर जस्ट 4 क्विजेज और 4 असाइनमेंट्स होंगी। मैं 4 की जगह 8 क्विजेज, 10 क्विजेज, 10 असाइनमेंट्स भी ले सकता हूँ। ठीक है, ये हमारे ऊपर है कि हम इस सेमेस्टर के अंदर इस एवेल्युएशन मेथड को किस तरह डिवाइड करते हैं। तो मिनिमम तो हमें 4 क्विजेज और 4 असाइनमेंट्स लेनी ही लेनी है। क्लियर हो गया आपको? फर्दर जो है अगर कोई आपकी सजेशन होगी तो हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, now I am going to tell you some of the rules that we have to follow in this semester. First rule is no late work will be accepted unless arrangements have been made in advance. तो पहला रूल ये है
कि कोई भी आपको असाइनमेंट दी जाएगी, कोई भी आपको टास्क दिया जाएगा, कोई भी आपको असेसमेंट दी जाएगी, तो उसकी जो टाइम लिमिट है उसके अंदर अंदर वो चीज़ आपको सबमिट करवानी होगी। ठीक है, सपोज अगर मैं आपको कोई असाइनमेंट दे देता हूँ, उसकी डेडलाइन दे देता हूँ और उसके साथ मैं टाइम भी दे देता हूँ, अगर मैं देखता हूँ कि ये असाइनमेंट इस टाइम के अंदर नहीं हो पा रही या कुछ और इश्यूज आ जाते हैं, तो तब जाके मैं उसकी डेडलाइन चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अदरवाइज टाइम के बाद जो असाइनमेंट मुझे मिलेगी दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ओके, क्लियर। सेकंड पॉइंट इज आस्क क्वेश्चंस, पार्टिसिपेट एक्टिवली इन क्लास। ये जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ऑनलाइन सेशन है, तो ऑनलाइन सेशन के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स पहले से दे दिए जाएंगे। ऑनलाइन सेशन से पहले आप उस वीडियो लेक्चर को देख लें, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आप नोट डाउन कर लिया करें। ड्यूरिंग ऑनलाइन सेशन आप मुझसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे, और जो स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उनके असेसमेंट के मार्क्स ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू दो स्टूडेंट्स हु डू नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन क्लास। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट पे आपने ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, आपने ड्यूरिंग ऑनलाइन सेशन एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। थर्ड जो है दैट इज टर्न ऑफ सेल फोन्स इन द क्लास एंड लैब। तो थर्ड पॉइंट जो है वो आपका क्या है, क्योंकि हमारा ऑनलाइन सेशन है तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, आप अपने सेल फोन्स पे भी MS टीम्स आपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप इस तरह करेंगे कि आपके जो सेल फोन्स होंगे उसको वाइब्रेट करेंगे या साइलेंट मोड पे रखेंगे। क्लियर। Rule number 4 is you are responsible for what is covered in class even if you don't show up। ठीक है, अब देखें अगर कोई चीज़ आप मिस कर देते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं तो तमाम सेशन तमाम क्लासेस टाइम पे कंडक्ट करूँगा। अगर आप कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाते तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप MS टीम्स वाला वीडियो लेक्चर देख लें जो हमारी रिकॉर्डिंग होगी, या जो वीडियो लेक्चर मैंने आपको दिया हुआ है आप उसको देखेंगे। फर्दर उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो ड्यूरिंग ऑनलाइन सेशन या MS टीम पे जो पर्सनल चैट है, कन्वर्सेशन है, उसके ऊपर आप मुझे मैसेज करके वो कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी अगर आपसे इन केस कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो आप उसको स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर लें कि आज की क्लास में सर ने क्या बताया है। अदरवाइज अभी तो आपके पास बहुत अच्छी एक मतलब ये है कि आपके पास वीडियो लेक्चर आ जाएगा, आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डेफिशिएंसी इन अटेंडेंस में लीड टू टर्मिनेशन और रेलीगेशन। ठीक है, इस रूल को मैंने इसलिए रेड किया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी अटेंडेंस 80% से कम होगी तो आप पेपर नहीं दे सकेंगे। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि ऑनलाइन सेशन अटेंड नहीं करते, तो इस दफ़ा हमें स्ट्रिक्टली ये कहा गया है कि स्टूडेंट को कहें कि वो ऑनलाइन सेशंस अटेंड करें। जिस स्टूडेंट की भी अटेंडेंस लेस देन 80% होगी वो पेपर नहीं दे सकेगा। नेक्स्ट रूल इज you are encouraged to help each other with your homework assignments but you must turn in your own work। अब इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि आपको इनकरेज किया जाएगा, मैं अगर आपको कोई टास्क देता हूँ, कोई असाइनमेंट देता हूँ, तो आप एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि एक स्टूडेंट वो असाइनमेंट बनाएगा और फर्दर जितने स्टूडेंट हैं वो कॉपी पेस्ट करके मुझे सबमिट करवा देंगे। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जो भी असाइनमेंट दी जाए वो इंडिविजुअली होती है, आप खुद से उसे सॉल्व करें। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो सबसे पहले आप मुझसे डिस्कस करें कि ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, फिर भी अगर आप हेजिटेट करते हैं कि सर से नहीं पूछना, तो आप अपने क्लास फेलो से पूछ सकते हैं, लेकिन उससे जस्ट आप आइडिया लेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप उस स्टूडेंट को कहेंगे कि ये वाला क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके भेज दो। अगर जिसका टास्क सेम होगा तो मैं दोनों के जो टास्क की असेसमेंट या असाइनमेंट जो होगी उसके मार्क्स 0 कर दूंगा। ये बात आप नोट डाउन कर लें, मेक श्योर कर लें। नेक्स्ट रूल इज प्लेजरिज्म इज नॉट अलाउड। इसका मतलब ये है कि कोई भी टास्क या असाइनमेंट आपको दी जाती है तो आप ये नहीं करेंगे कि उसका जो सोल्यूशन है नेट से कॉपी पेस्ट करके मुझे सेंड कर देंगे।
मेरे पास प्लेजरिज्म टूल है, मैं उस टूल के ज़रिए चेक कर लूँगा, जिसकी प्लेजरिज्म ज़्यादा होगी उसके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट रूल इज, इफ यू आर फाउंड टू बी चीटिंग यू विल फेल एट लीस्ट द असाइनमेंट, टेस्ट एंड परहैप्स द एंटायर क्लास। ठीक है, इट्स अप टू मी। अगर मैं देखता हूँ कि आप लोगों ने चीटिंग की है, मोस्टली स्टूडेंट्स ने एक दूसरे का टास्क, एक दूसरे की असाइनमेंट कॉपी पेस्ट करके मुझे दे दी है, तो ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं उसको एक असाइनमेंट के अंदर 0 मार्क्स दे रहा हूँ, या मैं उसे फर्दर जो उसकी पिछली असाइनमेंट्स जो मैंने सबमिट की हुई हैं उसके अंदर भी मैं 0 कर सकता हूँ। ठीक है, या मेरी मर्जी है कि मैं पूरी क्लास, एंटायर क्लास में उसके मार्क्स जो है वो 0 कर दूं। तो इस चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। मैं बार बार ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि चीटिंग, प्लेजरिज्म और ये जो कॉपी पेस्ट है, एक दूसरे का वर्क आप शेयर कर लेते हैं, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑनलाइन सेशंस हैं। इसमें आपको एक दफ़ा नहीं, लेक्चर दो दफ़ा समझाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो जो चीज़ें आपको वीडियो लेक्चर में क्लियर नहीं होती वो आप ऑनलाइन सेशन में क्लियर करें। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई इशू है, तो आप मुझसे MS टीम्स के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल के ऊपर वो डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज, क्विजेज आर अनाउंस्ड अनअनाउंस्ड। ठीक है, क्विजेज जो आपके होंगे, कुछ क्विजेज आपके अनाउंस्ड होंगे और कुछ क्विजेज जो हैं आपके अनअनाउंस्ड होंगे। ठीक है, तो इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मोस्टली मैं जो है अनअनाउंस्ड क्विजेज लेता हूँ, उसका फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट जो हैं अपने जो भी लेक्चर्स हैं वो साथ साथ कवर कर लेते हैं क्विजेज की वजह से। अदरवाइज फिर क्या होता है कि आप लोगों को अगर अनअनाउंस्ड क्विजेस ना लिए जाएं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं और आप इस तरह स्टडी नहीं करते जिस तरह आपको करनी चाहिए। तो क्विजेस में दोनों ऑप्शंस हैं, अनाउंस भी कुछ क्विजेस होंगे और कुछ अनअनाउंस भी होंगे। ठीक है जी, तो आई होप सो आज का जो लेक्चर 1 था हमारा, उसके अंदर जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं आपको प्रीटी क्लियर हो चुकी होंगी। फर्दर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, यू आर ऑलवेज वेलकम, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।